नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर इज फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। फिशर इंडेक्स नंबर इज geometric mean of Lasprais and Pache's index number. So Fisher index number is under root Lasprais into Pache's index number. इसका और एक फॉर्मूला ऐसा है, अंडर रूट समेशन P1 Q0 that is Lasprais upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 Lasprais into Pache's। इनका जो 100 है वो अंडर रूट के बीच में तो 10,000 हो जाएगा, तो बाहर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के साइन के बाहर बाय 100। ओके, तो हमारा लास्प्रेस मेथड क्या, लास्प्रेस का फॉर्म इंडेक्स नंबर क्या था 153.33 इंटू 157.14। आप इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो आपको फिशर का इंडेक्स नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी ये वैल्यूज डाल के करोगे स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। So it is 23/15 into 22/14 whole thing multiplied by 100, you will get the same index number, Fisher index number। क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा। So your index number using this Fisher's index number will be 155.23, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा। अरिथमेटिक मीन भी था तो 153 157 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो ये हो गया फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। Then we'll take the next index number, that is Marshall-Edgeworth index number। Marshall-Edgeworth index number में sum of both year quantity is taken as weight। तो वो इंडेक्स नंबर रहेगा समेशन P1 Q0 plus Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 plus Q1 into 100। आप क्या कर सकते हो, Q0 plus Q1 कर सकते हो multiplied with P1 multiplied with P0। either you can do this or you can say summation P1 Q0 plus summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 plus summation P0 Q1 into 100। अब हम लोगों ने ये वैल्यूज तो निकाल ही ली है। P1 Q0 is 23 plus P1 Q1 is 22 upon P0 Q0 is 15 plus 14 whole thing multiplied by 100। this will be your answer। You will get a separate index number using this method। So by Marshall-Edgeworth method, your index number is 155.17। This is again somewhere around your all other index numbers। So this is Marshall-Edgeworth index number। Now the next index number that we are going to study is Cayley's index number। केली इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। आज अभी हम लोगों ने लास्प्रेस पाशेस में जो वैल्यूज निकाले वही वैल्यूज को इंटरचेंज करके हम लोगों ने आंसर निकाले थे, लेकिन केली का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। केली के हिसाब से वेट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी। तो वहां पे हम लोग ये सारे वैल्यूज यूज नहीं करेंगे केली के केस में। वी विल हैव अ न्यू कैलकुलेशंस, क्योंकि केली के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए,
लास्ट ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का एवरेज. Cayley's index number, it takes average of base year and current year quantities. तो केली के हिसाब से इंडेक्स नंबर है P1Q अपॉन समेशन P0Q into 100, where Q is Q0 plus Q1 upon 2. तो हम लोग इधर पहले Q0 plus Q1 upon 2 निकालेंगे. That is, we'll find out Q. Q0 5 plus Q1 4. 5 plus 4, 9 by 2 is 4.5. Then 2 plus 3, 5. 5 by 2 is 2.5, sorry. 1, 1, this will be 1. Now you will find out P1Q and P0Q. 3 into 4.5, 2 into 2.5, 4 into 1, and P0, 2 into 4.5, 1 into 2.5, 3 into 1. आप ये values निकालोगे. So this is your Cayley's index number, और उसके लिए हम लोगों को बेस और करंट ईयर क्वांटिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा. तो हम लोग निकालेंगे Q0 plus Q1 upon 2, that is Q. So that is 5 plus 4 divided by 2 is 4.5. 2 plus 3 divided by 2 is 2.5. 1 plus 1 divided by 2 is 1. Now you will find out P1Q and P0Q. P1Q आएगा 3 into 4.5, 13.5. 2 into 2.55 and 4 into 1 is 4. Then this will be 9, 2.5 and 3. Total इसकी होगी 22.5 and 14.5. Your index number will be 155.17. This is Cayley's index number. Cayley's index number में हम लोग क्या करते हैं? We take weight as average of base and current year quantity. बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी का हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे. Q0 plus Q1 upon 2 निकालेंगे और उसको हम लोग वेट करके ले लेंगे and then we'll find out the index number. That is Cayley's index number. Then the last index number that we have learned is Walsh. Walsh के लिए मैं एक अलग सम दे दूंगी ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए. We have taken a different sum for Walsh. ये मैंने अलग इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों को अंडर रूट निकालना है. तो पहले ही सम में मैं चाहती हूँ कि इजीली अंडर रूट आ जाए जो आपको मुंह जबानी निकालते हैं. So this is a different sum. We have to find out Walsh index number. Walsh index number में वेट लिया जाता है करंट और बेस ईयर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन. That is अंडर रूट Q0 Q1 is taken as weight. तो फॉर्मूला है P1Q upon P0Q multiplied by 100. तो हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. तो हम लोग वेट क्या ले लेंगे? Q0 और Q1 का जो अंडर रूट है उसको वेट ले लेंगे. तो वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई Q0 Q1. तो वो हो जाएगा 16 into 4 64, 20 into 5 100, 9 into 25 225. अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 64 का रूट 8 है, 10 15. Now I will find out P1Q and P0Q. So P1Q will be 40, 8 into 10 80, 6 into 15 90. P0Q will be 32, 50, so it will be 5 into 10, that is 50, 3 into 15, that is 45. Now we'll total this.
and your index number will be 210 upon 127 is equals to 165.3 something. Okay, so this is your index number as per Walsh. अगर थोड़ी समरी देखें हम लोग इसकी, तो लास्प्रेज में वेट क्या लिया जाता है? तो मैं बोलूंगी इंडेक्स नंबर एंड द वेट दैट दे टेक. तो लास्प्रेज में वेट क्या है? Q0. पाशेज में वेट क्या है? Q1. डॉर्बेश बोलेज में क्या है? कुछ भी नहीं, एक्चुअली इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्प्रेज एंड पाशेज. फिशर क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्प्रेज एंड पाशेज. मार्शल एजवर्थ में वेट क्या लिया जाता है? Q0 प्लस Q1. केली में वेट क्या लिया जाता है? Q0 प्लस Q1 अपॉन 2. एंड वॉल्श में अंडर रूट Q0 Q1. According to their opinion, according to their thought process, every economist has taken a different weight for their own index number. तो अगर आपको एक सम दे दूं मैं, will you be able to solve it? Yes, ma'am. Let us do it.